Good morning, class. Take out your grammar book, last page, page number 128. Let's recall it. Articles, verbs, and pronouns. Let's recall it. Sharp your pencil. Let's do the exercise. Now, insert or omit. Insert that means articles जो आपके A and D हैं वो मिसिंग है, वो आपको फिल करने हैं. एंड omit मतलब उन्हें या तो जहाँ पे unnecessary यूसेज है उनको वहाँ पे लेस करना है, ओके, अवॉइड करना है. सो इंसर्ट और omit articles where necessary and rewrite the sentences. Now the first thing, the gold is precious metal. First of all, जो गोल्ड है बेटा वो अनकाउंटेबल है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई नो आर्टिकल विल बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ इट. कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा बेटा, ओके. सो मेक अ बॉक्स लाइक दिस, cut it. Now write here, gold is a precious metal. Because we are talking about one metal, so that's why A. So gold is a precious metal. Written. See beta, again I am repeating. A is used where consonant sound is there. आपके जो A to Z में 5 vowels are there, A, E, I, O, U. And when the noun is one, we listen the first sound of the word. First sound of the noun, you can say. If it is vowel sound, that means A, E, I, O, U. Then what we write there? An. What the article we use? An. And if it is consonant sound, noun is one, and if it is consonant sound, then we use A. क्या use करते हैं? A. And D is used for the specific. Okay, or more than one you can say. So this we have already discussed earlier about the articles. So gold is a precious metal. Now Fiji is island in Pacific Ocean. Now see, Fiji is one only island and island की first sound क्या है? आ, island, आ. So आ जो आपके स्वरों की आवाज़ है, what will come there? An. So right here, Fiji is an island in Pacific Ocean. Okay. Right everyone, Fiji is an island in Pacific Ocean. Now Fiji is an island in Pacific Ocean. Beta, why you are not using in Pacific Ocean? Because see here Pacific Ocean we can't count it. है ना, ओशन है वो, हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको. लाइक स्टेट, वी नेवर यूज एनी आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ द स्टेट. ओके. सो फिजी इज एन आइलैंड इन पैसिफिक ओशन. नाउ वेयर देयर इज विल देयर इज वे. जहाँ चाह है वहाँ रास्ता भी है. सो राइट देयर, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे. एक रास्ता ज़रूर मिलेगा.
जहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, वहाँ एक रास्ता ज़रूर मिलेगा. So write everyone, where there is will, there is a way. बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आप जनरली कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते अगर वो एज अ नाउन यूज़ है. ओके. एडजेक्टिव के आगे हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नो आर्टिकल इज़ यूज्ड. लाइक सी, द विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन. अगेन आई एम टेलिंग, विजडम है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. वी कैन ओनली फील, हम इसे मेजर नहीं कर सकते. इट इज़ अनकाउंटेबल. सो डोंट यूज़ एनी आर्टिकल. राइट देयर, विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन. ओके. Wisdom is the gift of heaven. Now the Everest is highest mountain in world. Another I am telling. See, Everest better, that's our mountain peaks we can't count we can't do. Okay. हम किसी भी माउंटेन को कभी काउंट नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज इन डैट मैनी पीक्स आर देयर. ये नहीं कि एक ही माउंटेन होती है, बहुत सारी माउंटेन होती है. रेंजेस आर देयर. ओके. एंड मैनी पीक्स आर देयर एंड इट इज़ वेरी हाई. बहुत ज़्यादा ऊंची है, बहुत बड़ी माउंटेन है ये. सो एवरेस्ट इज द नेक्स्ट थिंग इज हाइएस्ट. आपकी सुपरलेटिव डिग्री है. वेयर एवर सुपरलेटिव डिग्री इज देयर, आई टोल्ड यू, उससे बिफोर आपकी दी आर्टिकल आता है. जहाँ पे आपकी सुपरलेटिव एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव मतलब सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, दी आर्टिकल. सो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में. Written everyone. Everest is the highest mountain in the world. Is it visible now? So again I am repeating. Gold is a precious metal. First one is gold is a precious metal. Fiji is an island in Pacific Ocean. Done. Where there is will, there is a way. So right there, where there is will, there is a way. Wisdom is the gift of heaven. Everest is the highest mountain in the world. Everest is the highest mountain in the world. Now write the correct forms of the verbs given in brackets. Beta, when we are doing the verb, we have to keep many things in the mind.
See, all of you know your action is divided into three parts: present, past, and future, and there are subtypes further also. But for every type, you have to keep the rules in your mind. That if the work is regularly, then it will go in simple past. If it is already done, then it will, and it was, that means the action has taken some place, some time, and then it is completed, then it will go in perfect tense. Like the action is recently completed, then it will go in also perfect tense, third form. And if it is, the action is taken some time, some period of time, then it will go in continuous, in which it will go in continuous. Okay, so we dash to his house. नाउ सी इन 1975, अब आप 1975 में थे तो ये बहुत पुरानी बात है. सो राइट देयर कम का पास्ट क्या हो जाएगा? केम. वी केम टू दिस हाउस इन 1975. एंड हेयर एवर सिंस. और जो आप ये पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टेकन लिविंग के लिए, है ना, ये तो नहीं है कि आप बस आए और चले गए, नहीं, आप वहाँ पे रहने लगे. डैट मीन्स यू हैव टेकन अ पीरियड ऑफ टाइम, एक थोड़ा सा समय जो आपने बहुत सारा समय वहाँ लिया है. सो डैट्स वाई ये कंटिन्यूस में जाएगा. सो राइट देयर वॉज लिविंग एंड वॉज लिविंग हेयर एवर सिंस, और तब से ही हम यहाँ रहने लग गए. Return was living. Next, the train, the station. अब देखो ट्रेन अभी अभी निकल गई जब आप स्टेशन पहुँचे, तो ये एक्शन ऑलरेडी हो गया. सो आपको मैंने बताया था अगर वो एक्शन अभी अभी हुआ है या हो गया है तो आप उसे परफेक्ट टेंस में डालोगे. सो थर्ड फॉर्म आएगा. सो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर. क्योंकि जब आप पहुँचे दैट मीन्स आप भी पहुँच चुके हो, तो वो भी पास्ट टेंस में आएगा. सो वन, जब भी आप ऐसी कंडीशन हो तो एक बेटा एक आता है आपका परफेक्ट में और एक आता है सिंपल पास्ट में. ओके, जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो आप देखेंगे एक आएगा परफेक्ट टेंस में और एक आएगा सिंपल पास्ट में. सो द ट्रेन हैड लेफ्ट the station before I reached there. Now the first meet hold. देखो बेटा वो ऑलरेडी हो चुका है. ओके, सो द फर्स्ट मीट, होल्ड का पास्ट होता है हेल्ड. एंड हेयर वन ऑक्सिलरी वर्ब्स इज मिसिंग, सो राइट देयर वाज. सो द फर्स्ट मीट वाज हेल्ड इन एथेंस इन 1896. Now next है बेटा, he take a bath when the telephone rang. तो देखो बेटा उसने बात लेने में कुछ टाइम लिया ना, जब घंटी बज रही थी तब तक वो नहा रहा था. ठीक है, वर्क एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. सो जो आपका एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, जो थोड़े
टाइम पीरियड चला है उसे आप कॉन्टिन्यूस में डालोगे, किस में डालोगे, कॉन्टिन्यूस में. सो राइट देयर ही वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन द टेलीफोन रैंग. So right there he was taking a bath when the telephone rang. Now I write a letter to her yesterday. ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है. सो थर्ड फॉर्म लिखेंगे had written. You have completed that action, ना. So I had written a letter to her yesterday. Likewise, he go out 10 minutes ago. So ये एक्शन भी आप 10 मिनट्स पहले कर चुके हैं, वो एक्शन कर चुके हैं. सो ही हैड गॉन, थर्ड फॉर्म आएगा ही हैड गॉन. सो जो एक्शन जो आप ऑलरेडी मतलब कुछ टाइम एक्शन चला था फिर वो ख़त्म हो गया, वो एक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ है अभी अभी, तो उसे आप परफेक्ट टेंस में डालोगे. सो ही हैड गॉन आउट 10 मिनट्स एगो. ओके. So now both have to do these two exercise. Okay, and learn it.